Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. My name is Ashish Bhargav and welcome to another episode of daily news analysis that we do from Monday to Friday. And I hope that you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. दिवाली आपकी बहुत अच्छी रही होंगी and I believe and everyone is doing pretty well. And one more thing, please let me know if my voice is audible. Am I visible to each and everyone? Okay, so here we have with the another episode of daily news analysis. As we know that this is very important for every aspirants who are preparing for the exam. And as we know, majorly in this news analysis we discuss about the Hindu and Indian Express and why it is important to cover the good morning Kunal, and I hope आप अच्छे होंगे, आपकी दिवाली अच्छी रही होंगी. And here we discuss about major news analysis and इसमें आज हम सबसे important चीज़ें हम discuss करेंगे cloud seeding के बारे में. As we know that in the month of November and in the month of December and after Diwali season, we see mainly the residue burning in the part of Punjab in Haryana that directly impact on the NCR region, right? So in daily news analysis, we discuss about national news, international news, economy-based news, summits and conference, science and tech, personal news, and we majorly also discuss about Supreme Court verdict, which is very important. Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament, this is very important for your exam. And here is the quote that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. And आपको पता है questions of the day, so we'll discuss about 5 questions after this analysis. So quick tips में आज हम सीखेंगे कि आपके जितने भी writs होते हैं, writs क्या होता है my friends, after the in case of violation of somebody fundamental rights, Supreme Court and High Court can issue a writs, and that with the help of mnemonics we'll discuss about the what is writs. And here the very first news about the Jawaharlal Nehru. आज हम माई फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करते हैं चिल्ड्रंस डे के बारे में कि वाई जवाहरलाल नेहरू बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज बाल दिवस. इनकी एक बहुत फेमस बुक थी दैट इज नोन टू बी अ डिस्कवरी ऑफ इंडिया. दिस बुक वाज पब्लिश्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया. सो G20 की जब यहाँ पे समिट्स हुई थी ग्रुप मीटिंग में दैट प्लेस May 22 24, चिल्ड्रंस डे और बाल दिवस जो है दैट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन November 14th. क्यों? बिकॉज दैट वाज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हु वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एंड ये इनका जो जन्म हुआ था दैट इज 14th November 1889 एंड जो डेथ हुई थी 27th May 1964. सो इफ यू टॉक अबाउट the first prime minister of our country, the contribution that we should not to forget, and obvious the day is celebrated to appreciate and acknowledge children as they are the future of the country, and this date also marks the birth anniversary of first prime minister. So इनको चाचा नेहरू भी कहते हैं. And पंडित जवाहरलाल नेहरू born on 14 November 1889 in Allahabad, India, and he was a great advocate for children's right and for all inclusive education system. इनके टाइम में आपके जो इंडिया के प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs इस्टेब्लिश हुई थी. सो ही कंसिडर एवरी चाइल्ड एज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड appreciated them to the fullest. Children are like birds in a garden and should be carefully and lovingly nurtured as they are the future of the nation and citizen of tomorrow. So उसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो है बर्थ एनिवर्सरी को हम चिल्ड्रंस डे कब से सेलिब्रेट करते हैं. प्रीवियसली जब आप देखें तो चिल्ड्रंस डे दैट वाज celebrated in India on November 28th, the day World Children's Day that is celebrated globally by the United Nations. ये जो डे था आपका November 28th, that was globally by the United Nations. So however, after death of पंडित जवाहरलाल नेहरू in the year 1964, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर ये बताना है कि इनको पंडित वर्ड क्यों बोला गया. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके नाम से पहले पंडित वर्ड किसने अनाउंस की थी, कब अनाउंस की थी, क्या रीजन थी उसके पीछे. आप कोई भी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे. सो जवाहरलाल नेहरू इन द ईयर ऑफ 1964 जब इनकी डेथ हुई थी 27 मई को, सो द पार्लियामेंट इशूड अ रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश हिज बर्थडे एज एन ऑफिशियल चिल्ड्रंस डे इन द कंट्री. सिंस जैसे कि आपका टीचर्स डे होता है,
टीचर्स डे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे कंट्री क्या थे, प्रेसिडेंट थे एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. सो इंडिया सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज बाल दिवस, एंड इनको हम कहते हैं चाचा नेहरू के नाम से भी. So during Jawaharlal Nehru tenure, several educational institutions of national importance, Indian Institute of Technology, IITs, All India Institute of Medical Science, AIIMS and Indian Institute of Management that were set up. He was often called by the name Chacha Nehru. One more thing that you should know about, जानने की कोशिश करें जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स और इंडिया के फॉरेन रिलेशंस में इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, राइट. और इनको स्पार को इस्टेब्लिश करने के लिए इनके फ्रेंड थे कौन, इनको जो आपके इसरो के फाउंडर होंगे. तो इसरो के फाउंडर कौन है, विक्रम साराभाई. तो विक्रम साराभाई जो पहले इनको स्पार था, इनको स्पार बाद में चल के इसका नाम हुआ ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, राइट. तो इनकी कंट्रीब्यूशन स्पेस साइंस में भी है, राइट. सो ऑब्वियस वी शुड नॉट टू फॉरगेट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू. एंड इन्होंने 1929 में अनाउंस की थी द कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर इन द लाहौर सेशन. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जवाहरलाल नेहरू. नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे पोल्यूशन के बारे में, दैट रिविजिट करंट मेथड्स. यहाँ पे जो अभी के मेथड्स हमारे एयर पोल्यूशन, दैट स्पाइक्स रिजल्ट मोस्टली फ्रॉम लोकल सोर्सेज विद देयर इमिशंस that lingering close to the ground because of unfavorable winter weather condition. तो इसमें अभी recently क्या डिस्कशन हुई है क्लाउड सीडिंग के लिए, because much energy and resources that are being wasted by spending funds or technical solution by the Delhi pollution. और इसमें आपने देखा होगा like particulate matter, that is PM2.5 and PM10 nitrogen dioxide, and जो surface nitrogen और surface ozone होते हैं, that is reached daily by the WHO. और अभी जो आप यहाँ के हालात देखेंगे बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीवियर से भी ज़्यादा हम पहुँच चुके हैं. कुछ एरिया में, कल आपके आनंद विहार के एरिया में या बाकी एरिया में देखेंगे 900 से प्लस आपके जो थे वो पोल्यूशन का लेवल पहुँचा था एज पर द एयर क्वालिटी इंडेक्स. सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट इंड्यूसिंग artificial rain to fix lingering pollution remains a nebulous science. Delhi government attempt to alleviate severe pollution in Delhi by resorting the artificial rain or cloud seeding. My friends, इसी को जो artificial rain होता है ये इतना आसान है नहीं जितना हम आप समझ रहे हैं. इसके लिए अगर आप दिल्ली में आप देखो तो आपका more than 13 to 15 करोड़ का खर्च होता है artificial rain में, राइट. तो जो आप सोचते हो कि बहुत ईजी होगा, आराम से हम कर लेंगे, दैट इज़ नॉट टू ईजी. वेरी फर्स्ट थिंग, सो आर्टिफिशियल रेन को हम लोग कहते हैं क्लाउड सीडिंग. क्लाउड सीडिंग, सो क्लाउड सीडिंग is an experimental endeavor with no evidence so far that it will be successful in the non-monsoon months. Though cloud seeding has been attempted since the 1940 and was pioneered by the United States military. US military ने 1940 में इसको स्टार्ट किया था. So with the air quality severely bad by the Delhi government, experts from the IIT कानपुर, और ये जो है IIT कानपुर के जो हमारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट की थी इस चीज़ के लिए. सो द प्लान ऑफ द फुल डिटेल ऑफ विच आर नॉट नोन इज टू फ्लाई एयरक्राफ्ट इन द रेन क्लाउड्स विच anticipated in northern India around November 28th and sprinkle a proprietary salt solution on them. So much like seed is sprayed on the fertile soil, so the hope is that these salt will interact with the water droplets in the clouds, make them bigger and heavier, and they will eventually condense as rain. क्योंकि रेन के लिए आपको कंडेंसेशन का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन प्रिंसिपल दिस वर्क्स, बट मेनी फैक्टर्स मच अलाइन फॉर दिस it to succeed, as the most exhaustive analysis of cloud seeding in India has found, such as experiment in Solapur, Maharashtra, over the two monsoon in 2018. So the result of which were published in the Bulletin of American Meteorological Society in October, that concluded that seeding resulted 18% more rain and about 8.6 mm more rainfall. सो ये प्रोसेस क्या होता है क्लाउड सीडिंग का, इसको जानने की कोशिश करो. सो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसे प्रोसेस क्या होता है. ये देखो बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे चीज़ें दी हुई है. सबसे पहले जो क्लाउड सीडिंग इंडिया में यूज़ की गई थी, दैट वाज कंडक्टेड इन 1983.
द वेरी फर्स्ट टाइम बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे यूज़ किया था। क्लाउड सीडिंग होता क्या? बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ ऑगमेंट रेनफॉल बाय स्प्रेडिंग ईदर ड्राई आइस, जिसको हम CO2 कहते हैं। जो ड्राई आइस है माय फ्रेंड्स, ये आपका CO2 के फॉर्म में होता है, और मोर कॉमनली सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर का मतलब AgBr के फॉर्म में होगा, सिल्वर आयोडाइड मतलब AgI, aerosols that into upper parts of the clouds to try the stimulate precipitation process for rain। केमिकल कौन सा यूज़ करते हैं इसमें? मेनली जो आपका केमिकल यूज़ होता है वो होता है सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और लिक्विड प्रोपेन यूज़ करते हैं जो कि एल्कीन ग्रुप का होता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो ये प्रोपेन ग्रुप का होता है विच एक्सपांड इनटू अ गैस दैट हैज आल्सो बीन यूज्ड। मेथड्स क्या होते हैं इसकी? सो माय फ्रेंड्स, क्लाउड सीडिंग जो होता है इसमें केमिकल्स दैट मे बी डिस्पर्स बाय एयरक्राफ्ट, एंड जब एयरक्राफ्ट इसको डिस्पर्स करते हैं यहाँ पे, सो यूजिंग डिस्पर्सन डिवाइस ऑन ग्राउंड दैट जनरेटर्स और canisters fired from the anti-aircraft guns or rocket, and for release by aircraft, silver iodides flares are ignited and dispersed as an aircraft flies through clouds। इसको यूज़ किया गया था 2015 में भी। This very first time it was used in the cloud seeding operation that was conducted in the year of 1983 in India and by the Tamil Nadu government। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको यूज़ किया गया था। एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर बात करें यहाँ पे, सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन क्लाउड सीडिंग ऑन एनवायरनमेंट हैज़ बीन प्रूव टू बी अ मिनिमल। सो जो एक्सपेरिमेंट है दैट वाज कंडक्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपोलॉजिकल मेट्रोलॉजी इन पुणे, दैट रिपोर्ट शो दैट ऑल इंडिकेशंस ऑफ 24% एनहेंसमेंट इन द प्रेसिपिटेशन। तो 2015 में अगर बात करें तो यहाँ पे इंडिया में यूज़ किया गया था महाराष्ट्र में। सो इट वॉज ट्राइड इन महाराष्ट्र दैट टू फाइट 4 years लॉन्ग ड्रॉट। 2016 में इसको यूज़ किया गया था। सो ऑब्वियस यहाँ पे अगर बात करें प्रोजेक्ट की कॉस्ट की, तो आपको 2015 में जो कॉस्ट हुई थी माय फ्रेंड्स, वो हुई थी आपकी 2.71 करोड़। दिल्ली की अगर एस्टिमेट्स की बात करें यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 to 13 करोड़ रुपीज़ का खर्च होता है इसमें, ठीक है। सो 2008 के समर ओलंपिक्स में जो बीजिंग में हुई थी, उसमें क्लाउड सीडिंग यूज़ किया गया था बाय द यूजिंग विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स, सो दैट देयर वुड बी नो रेन ड्यूरिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट था दैट मोस्टली अंडरटेकन ओवर मराठा रीजन में से हमने यूज़ किया था। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है कि इसमें आपका सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड और ड्राई आइस, ये 3 हम यूज़ करते हैं इसमें, राइट, जो केमिकल्स यूज़ होती है इसमें। तो आप इस प्रोसेस को जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इन जनरली सिल्वर आयोडाइड रिलीज करती है बाय अ प्लेन और ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स के थ्रू, और जो सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स होते हैं दैट इज द टारगेटेड क्लाउड्स तक पहुँचते हैं। फिर सिल्वर आयोडाइड एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स, और ये जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं माय फ्रेंड्स, ये लार्जर इनफ होता है टू फॉल एंड क्रिएट स्नो। इससे कंडेंसेशन प्रोसेस डेवलप होती है विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन, राइट। तो ये क्लाउड सीडिंग आपका ऐसे वर्क करता है इसमें। तो ऑब्वियस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, एंड ऑब्वियस इट विल कि इसमें आपका जो खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नाउ हम नेक्स्ट आर्टिकल तरफ डिस्कस करेंगे, वो है आपका व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट इशूड अ डायरेक्टिव ऑफ डीपफेक्स। सो बात करें डीपफेक्स होता है क्या, एक काइंड ऑफ मॉर्फ वीडियोस होती है, राइट, जानने की कोशिश करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाउ डू डीपफेक्स वर्क्स एंड व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड देम एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द इंक्रीजिंग यूज ऑफ डीपफेक्स बाय साइबर क्रिमिनल्स और स्कैमर्स। कुछ सिमिलर आर्टिकल्स हमने डिस्कस की थी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रश्मिका मंदाना इज एन एक्ट्रेस, उनकी कुछ यहाँ पे मॉर्फ वीडियोस जो थी वो यहाँ पे आई थी विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ें डिस्कस की थी। ये आप फ्राइडे वाले सेशन में देख सकते हैं, जहाँ पे ओरिजिनल फेस, फिर इसको इनकोड करना, लैटेंट फेस में ऐड करके करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की क्या डायरेक्टिव्स है। यहाँ पे 8 नवंबर को इंडियन गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी to remove morphed videos or deepfakes from their platform within 24 hours, a complaint being filed in accordance with the requirement continuing the IT rules 2021, जिसको हमने अमेंडमेंट किया था IT rules 2021 में। पहले चीज़ देखो डीपफेक्स क्या होता है। डीपफेक्स हैव बीन अराउंड सिंस 2017 से यूज़ होता है ये, ठीक है।
that refers to videos, audios को change करना, and images that is created using the form of artificial intelligence AI tools से, that is called a deep learning, right? So इसमें क्या होता है, the term became very popular when एक Reddit के contributors थे that he used publicly available. तो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में 2023 में डीप फेक्स टेक्नोलॉजी जिसमें कि AI टूल्स की मदद से बहुत सारे सेमी और अनस्किल्ड इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने कि फेक कंटेंट को मॉर्फ ऑडियो विजुअल क्लिप्स को बताना स्टार्ट किया, इमेजेस को. एंड रिसर्चर्स हैव ऑब्जर्व 20 to 30% increase in deep fakes using by the cyber criminals and scammers that have predicted the technology that would replace phishing in a couple of years. एंड साइफरमा साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि ये बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रही है, क्योंकि इसको एडिट करने के लिए कोई आपको रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है. यू मस्ट नो अबाउट द क्या नाम है, आपको थोड़ी बहुत AI टूल्स के बारे में पता होनी चाहिए. सो हाउ डज डीप फेक्स टेक्नोलॉजी वर्क? ये टेक्नोलॉजी जो वर्क करती है वो आपकी करती है ज्ञान के ऊपर. जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क, ये जो आपका वर्क करती है दैट इज GAN. सो द AI जो ड्रिवन सॉफ्टवेयर होते हैं दैट डिटेक्ट्स द लर्न्स एंड सब्जेक्ट मूवमेंट्स and facial expression from the source material and then duplicate these in the another videos in images. So that to ensure that the deepfakes created as close as real as possible, creators use a large debate of source images. This is why deepfakes video जो होती हैं that is created by the public figures, celebrities, politicians को उनमें use करते हैं इसे. And the data set is then used by one software to create a fake videos, while a second software is used to detect sign of forgery in it. To the collaborative work on two software, fake videos को फिर render करते हैं until the second जो software package होते हैं can no longer detect the forgery. So why do laws in India say about deepfakes? जो हमारे IT rules है 2021 that requires that all content reported to be fake or produced using deepfakes that be taken down by the intermediary platforms within 36 hours. और अभी IT मिनिस्ट्री ने ये भी इशूड किया नोटिस टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स स्टेटिंग दैट impersonating online was illegal under section 66D of the IT Act 2000 and the IT rules 2021 that also prohibit hosting any content that impersonate another person's and require social media firms to take down artificially morphed images when alerted. So why do people create deepfakes content? Obvious, the technology could potentially be used to incite political violence, sabotage elections, unsettle diplomatic relations, and spread misinformation. So, however, deepfakes have positive uses as well. And the technology that has been used by the ALS Association in collaboration with the company to use voice cloning technology to help people with ALS dignity. तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए. एंड हियर वी मूव द नेक्स्ट वन, ये आपको समझ में आ गई. रिवैम्पिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टू फिट द बिल. Recently, government has introduced 3 bills to replace the core laws, that is Indian Penal Code 1860, Code of Criminal Procedure CRPC 1973, and Indian Evidence Act 1872, which is the form of basic of criminal justice system. And these bills are being examined by the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. And the Bharatiya Nyaya Sanhita bill that was replaced the IPC Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita and the Bharatiya Sakshi bill. मतलब इन सब के हिंदी में नाम यहाँ पर मेंशन की गई है, right? So as these bills replace the entire act and the not merely amendment bills to fix some gaps that provide an opportunity for an overhaul of the laws underlying the criminal justice system. इसको अगर मॉडर्नाइजिंग द लॉ की बात करें so there have been 7 issues that related to modernizing jurisprudence. First, whether these bills exclude civil laws. Usually criminal law deals with the issues that has seen as an offense against the broader society of a state, which civil laws deals with the loss to a person. Second है कि क्या ये जो बिल्स हैं, जो भी बिल पास किए गए हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए, can it create a reformative system rather than a punitive system? There is a move towards by it making community service as a form of punishment. And तीसरी चीज़ ये है कि क्या जो maintenance है public order and the process of criminal prosecution that should be the same law. CRPC that has provisions
charting out the process of arrest and trial as an item section 144 that empowers the district magistrate to impose various restrictions. And fourth ये है अपना कि like when whether various directions of the Supreme Court of India that have been codified in these processed law. And fifth, whether the bills try to ensure consistency of implementation. Typically penalties of offense specify range जहाँ पे कि जज को एक्सपेक्ट की जाती टू स्पेसिफाई द सेंटेंस विद इन द रेंज बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच. और सिक्स्थ ये है कि यहाँ पे क्या जो एज प्रोविजन है दैट हैज़ बीन अपडेटेड फॉर द मॉडर्न नॉर्म्स. द आईपीसी स्पेसिफाई दैट अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years कैन नॉट बी एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस. मतलब इसमें यह है कि 7 साल से जो नीचे हैं उनको कभी भी ऑफेंस में लीगलाइज नहीं किया जाएगा. एंड 7th, when gender related to offense have been updated, the bill is aligned with the Supreme Court judgment which struck down the offense of adultery, section 377 of the IPC, which was read down by the court to decriminalize same-sex intercourse between consenting adults has been dropped. Consequently, the parts retained by that judgment, including rape of a male adult and bestiality, that has also been removed. यहाँ पे जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 में has recommended making यहाँ पे marital rape as an offense. This has not been done. So कुछ केसेस में this has been addressed. For the example, जैसे आपका Legal Metrology Act 2009 को that states the provision of the IPC related to the weights and measures that will not apply. And ये जो bill है that removes these provisions. उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 जिसमें कि जो रिप्लेस करता है CRPC दैट जिसमें कुछ प्रोविजंस थे दैट रिक्वायरिंग मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स थ्रू अ स्पेशल एक्ट दैट वाज पास्ड इन 2007 दैट्स रिगार्डिंग दिस. सो दिस ऑल थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड कि ये जो 3 बिल है हमारे पास जिसमें कि इंडियन पिनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट जिसे भारतीय साक्ष्य bill that was replaced by the IEA, which is Indian Evidence Act 1872. इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस थी that we had already discussed. Now we move to the next article. Here we discuss the 1 lakh galaxies single frame the promise of Euclid. अब ये सबसे पहले समझो कि वो जो वर्ड हमने यूज़ किया गैलेक्सीज, गैलेक्सीज क्या होती है. ये कोई सैमसंग का फ़ोन नहीं है माय फ्रेंड्स. Galaxy is a group of stars. So यहाँ पे European Space Agency that is on Tuesday shared 5 images from its elusive telescope that launched from the Cape Canaveral, Florida in July. So यहाँ पे जो JWST है यहाँ पे that is zoom in one part of a sky at a time और Euclid excels at the imaging wide but still detail that is swathes of the universe. यहाँ पे जो है इक्लिड्स ऑन द क्वेस्ट ऑफ मैप थर्ड ऑफ द यहाँ पे स्काई में है और साइंटिस्ट को बिलीव है कि जो यहाँ पे जो डेटा है इक्लिड्स का दैट सेंड्स होम और रिसर्चर्स उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे. शैडो ऑफ रिस्क यहाँ पे जानने की अगर कोशिश करें तो इंडियन फाइनेंस रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs. माय फ्रेंड्स NBFC क्या होता है, बैंक से डिफरेंट होती है NBFC. जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दें मुथूट फाइनेंस, ये क्या है आपकी NBFCs हैं. NBFC और बैंक में डिफरेंस ये कि NBFC नेवर कैन इशू अ बैंक डिमांड ड्राफ्ट. NBFCs कैनॉट इशू अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब NBFC नहीं कर सकती है. बैंक के पास ये अथॉरिटी है. NBFC आपको लोन दे सकती है पर्टिकुलरली वन चीज़ पे, राइट. सो RBI रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो बैंक्स हैं आपके पास उनके पास लोन में देने के पैसे देने की अथॉरिटी होती है. उसके लिए सैफरल है, सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग. सैफरल दैट इज एक इंडिपेंडेंट बॉडी है दैट इज सेट अप बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, in the backdrops of India evolving roles of the global economy in the financial service sector and its position in various international fora. So the first edition of the Indian Finance Report published by Center Advanced Financial Research and Learning एक independent body है. So यहाँ पे on the positive side Safra reports करता है that after the liquidity crisis of 2008 and COVID pandemic, NBFC sector have improved along all dimensions. सो यहाँ पे क्योंकि अभी बैंक को मर्ज करने की बात हो गई थी बिकॉज बैंक का जो आपका NP है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए. चलो जी, अब हम बात करते हैं
ये G7 कंट्रीज़ को लर्न कैसे करें। माय फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ये जो है लर्न करने के लिए आप इस वर्ड को यूज़ करो, J फॉर जापान, USA, इटली, कनाडा एंड इंग्लैंड, और 2 कंट्री है जर्मनी एंड फ्रांस। टाइप ऑफ रिट्स के लिए आपको है यहाँ पे CPM हेडक्वार्टर्स। C स्टैंड फॉर सर्शियरी, P फॉर प्रोहिबिशन, M फॉर मैंडमस, H फॉर हैबीस कॉर्पस एंड H फॉर क्यू वारंट। ये रिट्स के लिए मैंने आपको बता दिया। द वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स। And here is the questions of the day. The very first questions: World Energy Outlook report is released by International Renewable Energy Agency, World Economic Forum, International Energy Agency and World Trade Organization. And C is the right answer. A movie titled The Man Who Knew Infinity is based on the biography of S. Ramanujan. Srinivas Ramanujan College, the historical government arts college in Tamil Nadu, is undergoing restoration project. And Srinivas Ramanujan एक Indian mathematician थे that renowned for his extraordinary contribution to number theory, mathematical analysis and continued fractions. He self-taught mathematics and gained recognition for his talent. Ramanujan works included groundbreaking resulting in mathematics analysis in finite series and elliptic function. Despite facing initial challenges, he collaborated with British mathematician G.H. Hardy at Cambridge University. और इनके लिए यहाँ पे नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द श्रीनिवास रामानुजन बर्थ एनिवर्सरी। 22 दिसंबर को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे को हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दैट इज अ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी वर्किंग अंडर द एजिस ऑफ। अभी आप देखोगे दिवाली शॉपिंग में बहुत सारे लोग गोल्ड खरीदते हैं और उसके लिए आपको BIS कहते हैं, BIS हॉलमार्क होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? माय फ्रेंड्स, दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ए इज द राइट आंसर। सो BIS जो है इंडिया नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, और BIS को इस्टेब्लिश किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 में, ये इफेक्ट में आया अक्टूबर 12, 2017। सो BIS रिस्पॉन्सिबल है स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स, हॉल मार्किंग, लैबोरेटरी सर्विस एंड ट्रेनिंग सर्विसेज के लिए। व्हाट डू यू नो अबाउट द मून? और यहाँ पे आप देखोगे तो B इज द राइट आंसर। सॉरी, so moon is the earth only natural satellite orbiting our planet. And the last question is production gap report is published by World Economic Forum, International Monetary Fund, World Trade Organization, none of the above. So my friends, you can answer D here. The World Production Gap Report that is authorized by SEI, which is called Stockholm Environment Institute, climate analyst, and E3G, ISD and UNEP, United Nations Environmental Program, that reveals the concerning trends. The report was launched 2019. Production gap quantifies the difference between the project extraction of coal, oil, gas, जिसमें भी fossil fuels होते हैं, by government and global production that required to meet climate goals, particularly those outlined in the Paris Agreement, जिसमें कि आपका वार्मिंग है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड to 2 डिग्री सेंटीग्रेड। So this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. And if you have any questions, please let us know in the comment section. And if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon, right? And जो रेड वाला आपको बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर देना,
और उस बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट कि जितने भी आपके पास हमारे मेंटर्स होंगे उनकी आपकी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियोस आएंगे प्रथम टेस्ट प्रेप पे, वो आपको सबसे पहले मिलेगी देखने को, राइट। चलिए, सो आज अलविदा लेते हैं। विल मीट यू ऑन टुमारो ऑन द सेम टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।